नमस्कार, मैं अशोक व्यास विजन उपेक्षा वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम के मंगलवार के इस अंक में आपका स्वागत है। उत्सव भरा रहा है पिछला सप्ताह, आने वाले समय में भी हमारा जीवन उत्सवमय हो ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे ITV गोल्ड की एक खास रिपोर्ट उस कार्यक्रम पर जिसका आयोजन हुआ मुनि सेवाश्रम के कार्यक्रमों को बल देने के लिए। और साथ ही आज के कार्यक्रम में जब हम हिंदी दिवस के समीप हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन जो हिंदी को केंद्र में रखकर हुआ उसका कुछ अंश आप तक पहुंचाएंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में। अब हम आपको लिए चलते हैं एक और ऐसे सेवा से परिपूर्ण आयोजन की तरफ जिसका संबंध मुनि सेवाश्रम से है। मुनि सेवाश्रम का जो प्रकल्प है कई वर्षों पूर्व साध्वी स्वरूपा करुणामूर्ति अनुबेन के द्वारा स्थापित किया गया था। राजकोट से कुछ दूर चलकर गुजरात में जो मुनि सेवाश्रम आता है वो प्राकृतिक रूप से भी रमणीय है। यहाँ पर अत्याधुनिक चिकित्साओं से संपन्न सुविधाएं लगभग निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा मुनि सेवाश्रम के अंतःपाती वृद्धों के लिए भी स्थान है, तो मंद बुद्धि वाली बालिकाओं की देखरेख के लिए भी व्यवस्था मुनि सेवाश्रम में की गई है। मुनि सेवाश्रम को और बल देने के लिए जो आयोजन न्यू जर्सी में हुआ उसकी कुछ झलकियां प्रस्तुत हैं। Thank you, ITV Gold, for inviting me to say a few words. I have a long-term association with Muni Sevashram. Since its inception, I've been connected with Anuben Thakur, who was the original organizer of this. And from a very small institution, by adopting one child, she started the whole organization, and step by step it has become like a big Vatvruksh. So from a small seed, with the proper nurturing and everything, now this organization has come to a stage at the international level where they have so many activities which is happening, anath ashram, school, vocational guidance to the children, hospital, and a place for a mentally retarded girls is also there. They have a Manav Seva Mandir where elderly people can also, take a rest and fulfill their desire. And they have a big cancer institution. So many work is going on under leadership of Vikram Bhai, and we are very proud of him. I urge everybody to support this organization and help them whatever way you can. And thank you once again, ITV Gold, for inviting me. And this organization I involved more than 20 years ago when Anuben was here in first time in this country. At the time she came out for fundraising for the senior peoples for the home and back home. But that time I learned it from her, and from that day I involved with that all the time, and every year I participated in that programs. And also
4th time I already visited to ashram in Waghodia near the Baroda. I'm glad to see that a lot of people came here today and participating in this event. We are really appreciate, and we hope that everybody can participate and help as much as you can do. Thank you. Hi, my name is MZ. My name is MZ Patel, and I want to say that Muni Seva was a great service they provided from Anuben and to Dr. Vikram Bhai. It's a good supporter we are, and we will be there with them always. Thank you. Muni Seva Ashram is a charitable foundation in India and serving in the rural tribal area of Baroda, Gujarat. And we are providing educational and medical services mainly to the needy people. And also we serve as senior citizen home and mentally challenged women there. And also promoting the organic farming and renewable energy technologies in nearby area. Because we are really supporting Vikram Bhai and Goraj Hospital, Muni Seva Ashram Cancer Hospital. I was his colleague, and it is my imperative duty to help any cause and whatever he's doing for years and years. We are just minimal. What he is doing cannot be matched. We are just little part of it, you know. Muni Seva Ashram, I came to know about it in 1985, and I visited first time in 1986 when I went to the India. And what I saw was amazing. It was very divine atmosphere, and I was sold to it. So since then, I have made Muni Seva Ashram as my field of activity. So in 2015, I retired from my practice of surgery. And since then, I'm spending my post-retirement time for the benefit of the Muni Seva Ashram. So now that I'm not working anymore, I visit every year. I spend a couple of months there. And, we help out with the activity that supports all the activity that the Muni Seva Ashram does. And even we work at enhancing what is being done. કોઈ પણ વસ્તુ હોય મારી કોઈ પણ સિક્રેટ હોય તો મારા પપ્પાને પહેલી ખબર છે ઇવન મને 2 મંથની બેબી હતી મેં જેન્ડર રિવીલ કર્યું એ પહેલા પપ્પાને કહ્યું હતું કે બેબી ગર્લ છે અમને બેને જ ખબર હતી બીજા કોઈને ખબર નથી એટલે ટ્રસ્ટ કરજો મારા પપ્પા પર અને જાઓ ઇન્ડિયા ત્યારે અવશ્ય જજો મુનિ સેવા આશ્રમમાં તમને લાગશે કે તમે સ્વર્ગમાં છો એ સીધો એક્સપિરિયન્સ એ જ થાય છે ગ્રીનરી છે શાંત વાતાવરણ છે બધું જ છે પીસફુલ એન્વાયરમેન્ટ ટોટલી અને પ્લીઝ મારા પપ્પાને ખાલી હાથે ના જવા દેતા રિક્વેસ્ટ કરું છું અને આ તમારું કશું ખોટું કશે જવાનું નથી એટલે રિક્વેસ્ટ કરું છું કે કંઈ પણ નહીં થોડું બી આપજો જેટલા છો એટલા બધા પણ ખાલી હાથે મારા પપ્પાને આજે ના જવા દેતા જય શ્રી કૃષ્ણ. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम जो आप तक आता है सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे और इसका एक साप्ताहिक अंक हम आपके लिए लेकर आते हैं रविवार की सुबह 11 बजे। आपके सहयोग के लिए, आपके प्रेम और उत्साहवर्धन के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन बने रहे हमारे साथ जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया का ये अंक इस छोटे से अंतराल के बाद। सितंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आता है। 14 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस के आसपास हिंदी को केंद्र में रखकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसा ही एक आयोजन हुआ ऑनलाइन जिसके सूत्रधार थे इंडिया नेट बुक्स और अनुस्वार मंच और प्रवासी साहित्य संगमन द्वारा आयोजित हुई इस संगोष्ठी में कई देशों के साहित्यकार और हिंदी प्रेमी सम्मिलित हुए। विषय था वैश्विक हिंदी के विकास और विस्तार की चुनौतियां। डॉक्टर संजीव ने इसका नियामन किया। मुख्य अतिथि के रूप में थे न्यू जर्सी से और अनन्य पत्रिका के आधार स्तंभ अनूप भार्गव। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
भाषा मन भावन है, कितनी ये पावन है, तीनों रूपों में ये मन को रिझावन है। हिंदी का दुनिया में विस्तृत संसार, हिंदी से प्यार हमें, हिंदी से प्यार। ज्ञानमयी ध्यानमयी रागमयी मानवमयी, वर्ण शब्द सब वाक्यमयी, भाव से व्यक्त तानमयी। हिंदी के कितने हैं रूप हजार, हिंदी से प्यार हमें, हिंदी से प्यार। मैं अनन्य की बात करना चाहूँगा, और अनन्य की इसलिए नहीं कि अनन्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अनन्य की बात इसलिए मैं करना चाहूँगा कि क्योंकि उसमें हमने एक थोड़ा सा नया प्रयास किया है। और वो नया प्रयास ये है कि हमने शुरुआत हम करते हैं हिंदी से प्यार है, कि जब हमने हिंदी से प्यार है को शुरू किया तो हमने एक जो बड़ी महत्वपूर्ण शर्त अक्सर लगाई जाती थी कि हिंदी के लिए कुछ करने के लिए आपको हिंदी का विद्वान होना जरूरी है। हमने उस शर्त को हटा दिया, और उस शर्त को हटाने का फायदा ये हुआ कि हमारे जो स्वयंसेवी जो जुड़ने वाले लोग थे, उनकी संख्या सैकड़ों से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई, और ये मेरा मानना है कि ये लाखों तक पहुंच सकती है ना। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो हमने की कि हमें सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। उनके बिना बहुत से काम हैं जो उनके बिना नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होना हर बात में ये जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं भी होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि अगर आप हिंदी से प्यार है करने वालों की एक फौज खड़ी कर दें, तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना सरकारी सहायता के संभव हैं। तो ये एक हमें नई सोच हमें देनी होगी कि हर बात में हम सरकार पे निर्भर न रहें, ये सोचें कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं, है ना। इसी से जुड़ी बात आती है कि हम बातों की बजाय कुछ व्यावहारिक जमीनी स्थल पे बात करें। चर्चाएं जरूरी हैं, विमर्श जरूरी है, लेकिन अगर बात वहीं खत्म हो जाती है तो फिर कुछ अधूरा रह गया, है ना। तो मैंने पिछले हिंदी दिवस पे एक ऐसे ही अचानक मेरे मन में ख्याल आया, और वो मैंने दिया कि हिंदी की बात मत कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, है ना। हिंदी की बात तो बहुत हो चुकी है, बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हमें करना भी चाहिए, लेकिन ये देखिए कि आप खुद कितना कर सकते हैं, है ना? ये बात। अब मैं आता हूँ अनन्य के बारे में जो हमने शुरू किया है। उसमें मेरा स्वप्न ये है कि एक तो हम लोगों ने अनन्य शुरू करी, जो अनन्य मेन जिसको कहा जाना चाहिए, वो न्यूयॉर्क से शुरू की हम लोगों ने, कौंसल आवास से, और हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक मंच दिया। लेकिन जो मेरा स्वप्न है और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ, अभी हमने सही शब्द नहीं चुना है, लेकिन अनन्य विश्व अगर कहें उसको, जिसमें कि हमने अनन्य के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदी का एक छोटा सा बीज बोने का प्रयास किया है। मैं कोई हिंदी का उस प्रकार का मुख्य धारा जो हिंदी सीखने सिखाने की, या एक प्रकार से अगर मैं अंग्रेजी का शब्द उदाहरण ले लूँ, एक्टिविस्ट, उस तरह का नहीं हूँ। पर पिछले 25 वर्षों से, जब से मैं अमेरिका में हूँ, तो संचार माध्यम मीडिया के साथ जुड़े रहने का अवसर रहा है। भारत में भी मैं आकाशवाणी जोधपुर के साथ था 14 वर्ष, और यहाँ भी एक ITV गोल्ड जो न्यूयॉर्क में उनके साथ। और तो मुख्य रूप से हिंदी के साथ प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और कुछ प्रेम करने के साथ साथ अपने को हिंदी में अभिव्यक्त करने के साथ आनंदित होने और एक तृप्ति के भाव तक पहुंचने वाले लोगों में से भी मैं अपने आप को सौभाग्य से पाता हूं। मैं कुछ बातें जो कह रहा हूं वो हो सकता है आपके इस मुख्य जिस तरह का चिंतन चल रहा है उससे थोड़ा इधर उधर हो, पर बहुत संक्षेप में मैं अपनी ओर से ये कहूँगा कि जो थोड़ा विनोद का आधार लेते हुए, और मैं सबके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा मन रहता है कि मैं भी मुस्कुराऊं, आप भी मुस्कुराएं, और अनूप जी मुझे हल्के हल्के हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो अनूप जी के नाम के साथ मैंने जब ये पढ़ा कि अपनी भाषा में मुस्कुराइए, अपनी भाषा में मुस्कुराइए, बिल्कुल। तो ये जो सबके नाम लिखे हुए आए उसमें अनूप जी मेरे मित्र हैं, इसलिए भी मैं ये स्वतंत्रता ले रहा हूँ कहने, वो मुख्य अतिथि हुए तो बाकी के लोग मुख्य नहीं हुए, ऐसा एक सीमा रेखा आ जाती है कि एक मुख्य है तो बाकी के मुख्य नहीं है। पर मुझे पता है कि आपका भाव क्या है और अनन्य को आप जिस तरह से रेखांकित करना चाहते हैं वो भी। पर मैं इस बात को लेकर हिंदी की तरफ आ जाता हूँ सीधा। जब हम जिसको प्रमुख मानते हैं तो उस तरफ हमारा ध्यान स्वतः प्रवाहित होने लग जाता है। तो हम हिंदी भाषा के प्रति यदि सम्मान का भाव रखेंगे तो उस तरफ ध्यान जाएगा। जहां जहां हमारे लिए शक्ति के चिन्ह हैं उनको साथ लेते हुए उसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न रखते हुए फिर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो क्योंकि राजनीतिज्ञ जो है वो जैसे अभी पूर्व में भी ऐसा संकेत आ रहा था कि वो संसाधनों के वितरण के निर्णय की क्षमता रखता है, तो हमें उनके अंदर का जो हिंदी प्रेम का भाव है उसको थोड़ा और अधिक उत्साह देना चाहिए, उनकी सराहना करके इस तरह के कुछ और प्रकल्प चाहे भारत में या भारत से बाहर हो उनमें कुछ और कार्य होना चाहिए। तो इस सत्यता को मानते हुए मैं हमेशा से आगे बढ़ा हूँ, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। उसी प्रकार से अशोक व्यास जी ने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हिंदुस्तान का, या मंदिर में हिंदी पढ़ाई जाती है और मस्जिद में उर्दू। तो इस बात से मेरे मन में यह विचार उठता है कि हमें इन बातों को लेकर भी बहुत भावनात्मक नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, उर्दू भी भारत की भाषा है, उर्दू कहीं बाहर की भाषा नहीं है, लेकिन वो अरबी फारसी से प्रेरित होकर उर्दू का निर्माण हुआ। लेकिन जहां तक हिंदी की बात है, बांग्ला की बात है, तमिल की बात है, पंजाबी की बात है, गुजराती भाषाएं हैं, ये सब संस्कृत भाषा से निकली हैं और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है। इसलिए मंदिरों में आप बांग्ला सुनेंगे, तमिल सुनेंगे, संस्कृत सुनेंगे, हिंदी सुनेंगे, लेकिन उर्दू नहीं सुनेंगे। और मस्जिदों में उर्दू सुनेंगे, गुरुद्वारों में पंजाबी भाषा रहेगी, चर्चों में अंग्रेजी भाषा रहेगी, क्योंकि वो धर्मों का विकास उन भाषाओं के माध्यम से ही हुआ है। इसलिए इसको भावनात्मक रूप से लेकर एक नई राजनीतिक लड़ाई या धार्मिक लड़ाई खड़ी करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और ना हमें इस बात में भावनात्मक होना चाहिए कि हम इस बात का वो रखें हृदय में कि वहाँ पर मस्जिदों में हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती या मंदिरों में उर्दू क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो इसका सभी आस्थाओं का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। और वहीं आज बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है जो जब आती है बात की नई पीढ़ी में रुचि के ऊपर जो आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि नई पीढ़ी में हिंदी की रुचि बढ़ रही है या घट रही है, तो मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि ये चिंता हमारे दादा भी किया करते थे, हमारे पिताजी भी किया करते थे और आज हम भी कर रहे हैं। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर भी ITV गोल्ड के मित्र बने और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लिखने का क्रम जारी रहे events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें। नमस्कार।